میتھیس نے درخواست کی کہ اسے پہلے قتل کیا جائے، لیکن شمعون نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے بچوں کے قتل کا پہلا گواہ بنایا اور پھر ان کی لاشوں پر اسے قتل کیا۔ صفحہ نمبر 204۔ اس طرح اپریل 69 عیسوی کو شہر کے پھاٹک کھولے گئے اور شمعون بن غورس اس کے حاکم کی صورت میں داخل ہوا اور شہریوں کو یوحنا کے خلاف لے گیا۔ اب ہیکل میں الیعزر زیلٹس کے اتحادی بن گئے۔ اگرچہ شمعون کے لوگ زیادہ تھے، یوحنا کے لوگ اور زیلٹس کو بلندی پر ہونے کا فائدہ تھا، اس لیے کہ وہ ہیکل کے برسوں سے اپنے دشمنوں پر میزائل پھینک سکتے تھے۔ الیعزر اور زیلٹس میں جھگڑا پھوٹ نکلا۔ کوئی 2400 آدمی ہیکل میں یوحنا کے ساتھ مل گئے اور زیلٹس کے جابرانہ رویے کو حقارت سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے ہیکل کا اندرونی احاطہ اور ارتفاعی علاقہ قبضہ میں کر لیا اور یوحنا کے لوگوں کو باہر دھکیل دیا۔ وہ بڑی تعداد میں ہیکل کے اندرونی احاطہ میں فوری طور پر ان کے تحت رہے، لیکن درمیان میں ہی پکڑے گئے۔ یروشلم کے بہترین زمین دوز پانی کے ذخیرے سے یہ اعتماد تو تھا کہ شہر دوران محاصرہ پیاسا نہیں مرے گا، لیکن خوراک کے ذخائر کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ شہر کا زینی علاقہ سارے کا سارا شمعون اور اس کے پریشان اتحادی سردار کاہن کی جماعت کے قبضے میں تھا۔ اس طرح یہ دفاع کرنے والے 3 حصوں میں بٹ گئے اور اس پریشانی کی حالت میں یوحنا اور شمعون دونوں نے یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کو جلا دیں گے، شہر کو آگ لگا دی۔ اس طرح انہوں نے یروشلم کی بربادی پر مہر لگا دی۔ حالانکہ شہر کا بہترین پانی مہیا کرنے کا زمین دوز ذخیرہ کئی سالوں کے لیے کافی تھا اور ناقابل تسخیر تھا، لیکن اس کی خوراک کے ذخائر ناکافی تھے۔ آگ نے خوراک کے گوداموں کو تباہ کر دیا جو لمبے عرصے تک محاصرے کے لیے کافی تھا۔ جیسا کہ لگتا تھا کہ اس قتل و غارت میں ہیکل کی رسومات جاری رہ سکیں گی، پھر بھی عبادت گزار دعا اور قربانیاں کرتے رہے، حالانکہ ان پر پتھروں اور نیزوں کی بارش ہوتی رہی اور ان کے خون کو ان کی قربانیوں میں شامل کرتی رہی۔ جوزفس لکھتے ہیں، مقدس احاطے میں خون کا تالاب بن گیا اور عوام رومیوں کے آنے کی دعا کرتے رہے تاکہ وہ انہیں ان نام نہاد آزادی دینے والوں سے بچائیں۔ یہ سن 70 عیسوی کا موسم بہار تھا، جب ٹائٹس اپنے 3 مختلف لشکروں سے یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے 2 لشکروں کو تو مشکل حل کرنے کے لیے بھیجا، 5ویں دستے کو اماوس کی راہ سے اور 10ویں دستے کو یریحو کی جانب سے، اور اپنے 15ویں دستے کو اپنے ساتھ لایا۔ اس نے 12ویں دستے کو اپنی کمان میں رکھا۔ اس کی فوج کے لوگوں نے اپنی جھیم مٹانی اور اپنی ساکھ بچانی تھی۔ اس کے علاوہ بھی 2 اور فوجی یونٹ تھے، مصری لشکر اور تیسری جو سرینائکا کے نام سے پہچانی جاتی، اور 22ویں ڈیوتریانا۔ یہ لشکر روم کے باجگزار بادشاہوں نے باہم پہنچائے تھے۔ بادشاہ اگرپا اپنی فوج کی رہنمائی خود کر رہا تھا۔ صفحہ نمبر 205۔ ٹائٹس یروشلم کی طرف بڑھا اور شہر کے شمال کی طرف 4 میل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ وہ فصیل کے اندر کی چپقلش کو جانتا تھا۔ اس نے 500 گھڑ سواروں کا دستہ بنا لیا اور فصیل کا جائزہ لینے لگا تاکہ باغیوں کے مخالفوں کی اندرونی کارروائیوں کا ثبوت پا سکے۔ اچانک یہودیوں نے جائزہ لینے والی پارٹی کے خلاف دھاوا بول دیا، جو روم اور جنگ کا پانسا پلٹنے کے بالکل قریب آ چکی تھی۔ اس طرح آئندہ بننے والا بادشاہ خود کو محبوس سمجھنے لگا۔ زیادہ تر لشکر جرار درمیانی سڑک پر ہی رہا تھا جو شہر کے پھاٹکوں کو جاتی تھی۔ وہ اور ایک چھوٹے دستے نے ساتھ والی سڑک کی طرف اپنا راستہ بدل لیا۔ اچانک یروشلم میں خواتین کے برج سے یہودیوں کا جمع غفیر نکل پڑا، جس نے ٹائٹس کو اس کے دستے سے جدا کر دیا اور اسے شہر کی فصیلی دیوار کی طرف سے باغات کی باڑ کی طرف دھکیل دیا۔ یہودی یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ بڑا انعام جس کا گمان رومی کر سکتے تھے اب ان کی بساط میں تھا۔ ٹائٹس نے دیکھا کہ
वो ना तो पीछे हट सकता है और ना आगे जा सकता है। वो चंद आदमी जो उसके साथ थे समझते थे कि या तो वो उससे बच निकलेंगे या फिर किसी भी सूरत में जंग उनके लिए खत्म हो चुकी थी। महज जायजा लेने वाली मशीन की वजह से ना तो उसने अपनी खौत पहनी थी और ना ही सीना बंद लगाया था, लेकिन उसने अपने साथियों को अपने साथ आने का इशारा किया। वो अपने दुश्मनों के दरमियान जा कूदा। उसके गिर्द तीरों की बौछार हो रही थी जिससे वो गिर रहा था, उनकी लाशों पर भाग रहा था। उसके 2 आदमी तीर लगने से जमीन बोस हो गए, लेकिन टाइटस और उसके साथी बच निकले और अपनी असल फौज में जा मिले, फिर अपने लश्कर की सफों में शामिल हो गए। शहर के शुमाल में कोहे सकूपस पर उसने 5वें दस्ते से राब्ता कर लिया और अपना पड़ाव डाल दिया। 10वें दस्ते ने कोहे जैतून पर अपना मोर्चा संभाल लिया। यहूदियों ने जब देखा कि रोमी अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम कर रहे हैं तो थोड़े अरसे के लिए अपने तफर्रुकात भूल गए, तो कदरून की वादी की उतराई से जोर का हल्ला बोल दिया और इस तरह दूसरी तरफ भी किया। यूं 10वें दस्ते को अचानक जा लिया। उसके आदमी अभी तक कैंप बनाने में मसरूफ थे। यूं वो अपने हथियारों के बगैर ही पकड़े गए। यहूदी बिला किसी निजाम उन पर टूट पड़े। यूं रोमियों को बौखला दिया कि वो कैंप छोड़कर भाग गए। यानी रोमी फौज का कैंप एक मॉडल टाउन की तरह था, जिनके खैमे गली के साथ साथ पड़े थे, जो 90 दर्जे डिग्री पर मिल जाते थे और उनके कमांडर का हेडक्वार्टर दरमियान में होता था। जैसा कि 2000 साल बाद फौज में होना था कि वो आदमी वक्त मुकर्ररा पर बुलाए जाते हैं और अपने सिपा सालार के सामने खड़े हो जाते हैं, को उनकी सलामी का जवाब देकर अपने दस्ते को खिताब करता है, फिर अपने कमांडर को सलामती देता है, इस दिन के अहकाम जारी करता है। पैदल दस्ती अपनी सुपरें लगाता और अपनी जौदें पहनता है और तलवार को अपनी बाईं तरफ लटकाता है और लंबी करपान यानी डेगर अपनी दाईं तरफ। प्यादे अपना तीर कमान भी लिए चलते हैं। टाइटस जल्द ही अपनी इजाफी कुमक लेकर पहुंच गया और वादिये कदरून के नशेबो फराज में जंग छिड़ गई। आखिरकार रोमी फौजियों ने बागियों को वादी से भगा दिया और फिर शहर में धकेल दिया। सफा नंबर 106 ए। इसी दौरान टाइटस ने 10वें दस्ते को कैंप बनाने में मसरूफ कर दिया और बाकी फौज किसी भी हमला के लिए तैयार खड़ी रही। पहली ही मतभेड़ ने टाइटस को चौकन्ना कर दिया कि वो एक जरार और गैर मुतवक्का दुश्मन का सामना कर रहा था। अगले कई महीनों में रोमियों को यहूदियों के सफाक हमलों का सामना करना पड़ा। आला कुव्वत के बावजूद रोमी बाज़ औक़ात अपनी जीत से मायूस हो जाते। यहूदियों में जिस बात की कमी थी वो उनके लश्करों में इत्तेहाद और तंजीम की कमी थी। जो ही ये मदाफियती लश्कर शहर में गया, उनकी दुश्मनी फिर फूट निकली। ईद फसाह करीब था और अलीयज़र इबादत गुजारों को बड़ी एहतियात से हैकल में जो उसका गढ़ था दाखिल कर रहा था। गेशाला के यूहन्ना ने बड़ी होशियारी से इस मौके से फायदा उठाया। एक दफा जब उसके आदमी सुलह पसंद इबादत गुजार बनकर हैकल में दाखिल हो गए तो वो मुसल्लह हमलावर बन गए। वो अपने हथियार ले आए और उन्होंने फिर अंदरूने हैकल पर कब्जा जमा लिया। टाइटस ने कोहे सकूपस और शहर की शुमाली दीवार के दरमियान 4 मील की अराजी को साफ कर लिया और ये तीसरी दीवार कहलाती थी, जो 30 साल पहले बनाई गई थी, जब रोमी क्लाइंट बादशाह अग्रप्पा अव्वल यहूदिया पर हुक्मरान था, ताकि शहर की शुमाली तरफ की नौ आबादी को रोका जा सके। इसलिए उसको खौफनाक नहीं समझा गया था। ताहम उसके पीछे 2 और दीवारें थीं जो यकीनन बहुत ही खौफनाक थीं। नई दीवार पर यहूदियों ने एक बड़ा ड्रामा किया। एक जमात तो रोमियों से दरखास्त कर रही थी कि उन्हें बचाएं और दूसरा गिरोह उनकी सख्त मुखालफत करने का ढोंग रचा रहा था। अब तक टाइटस यहूदियों के ड्रामे से तंग आ चुके थे। उसने अपने आदमियों को डटे रहने का हुक्म दिया। कुछ सिपाही तो दीवार की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। जब फाटक के बुर्जों के दरमियान आए तो उन्होंने यहूदी हमला आवरों में खुद को घिरा हुआ पाया, जबकि दूसरे पथराव की वजह से दीवार से दूर हो गए।
वो बड़ी मुश्किल से पीछे हटे और बड़ी झेप महसूस की। फसील से यहूदियों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, बहुत शोर मचाया, खुशी से रक्स किया और रोमियों को बेवकूफ बनने पर तंज किया। इसी दौरान टाइटस ने दीवार के शुमाल और मगरबी हिस्से ज़ेरी हिस्सों में कमी में बिठाए हुए थे, जिनमें 3 कतारें घुड़सवारों की थी और 3 कतारें पयादों की थी और दरमियान में तीरंदाज थे। एक नई मुसीबत फूट निकली। यूहन्ना के 6000 साथी अलीएज़र के 2400 हवारियों पर टूट पड़े। जो कुछ उनके बीच आया उनको तबाह बर्बाद कर दिया और इसी वक्त शमाउन के 15,000 शहर में भागे फिरते थे। दीवार के गिर्द देखते हुए टाइटस ने देखा कि जनूब और मशरकी से हमला करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि उनके गिर्द गहरी खाइयां थीं। ताहम शहर के मगरबी किनारे पर जहां हेरोदिस का महल खड़ा था, एक नई दीवार यहूदियों की मज़ाहमत की जगह तक जाती थी। उसके पास अपने शहर को बचाने का एक ही रास्ता था कि अपने आदमियों से अपील करता। मौरखीन इस पर यह बहस करते हैं कि क्या जोसेफस ने वाकई ये बातें की थीं या महज अपने ख्यालात को 6 साल बाद अपने रोम के पुरकैफ घर में बैठकर सोचा था। खैर, जोसेफस के बयान के मुताबिक वो दीवार के बिलमुकाबिल खड़ा हुआ, इतना कि उसकी आवाज सुनाई दे, मगर इतने फासले पर था कि तीरंदाजों की जद से दूर रहे। फिर अपने लोगों से जोर से चिल्लाकर खिताब किया। सफ़ा नंबर 206 बी। अगर उन्होंने संजीदगी से सोचा होता कि वो क्या कर रहे थे, उस बेअक्ली का मुस्तकिल नतीजा हैकल की और शहर की मुकम्मल बर्बादी होता। अगर उन्होंने ये समझा होता कि वो सिर्फ रोमियों से नहीं लड़ रहे बल्कि खुद खुदा से लड़ रहे थे, जब भी उनका हदफ दुरुस्त होता तो क्या खुदा ने मुदाखलत करके उन्हें नहीं बचाया था? तब उसने आवाज को और बुलंद किया कि उसकी आवाज फसील पर गूंजने लगी। हम कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकते कि हमारे आबाओ अजदाद ने जंग करके कामयाबी या नाकामी हासिल की। ये तब हुआ जब बगैर जंग के खुदा के सामने खुद को झुकाया। जहां तक तुम्हारा ताल्लुक है, उन बातों का जिन्हें शरीयत देने वाले ने हुक्म दिया, आपने क्या किया है, और उन बातों से जिनसे मना फरमाया था, उनसे क्या कुछ नहीं किया। दीवार से उसका जवाज महज तज़हीक थी और पत्थरों का बरसाना। उस पर जोसेफस बिल्कुल उन यहूदी नबियों की तरह टूट गया। ऐ सख्त दिलो, तुम कितने बदकिस्मत हो। अपने हथियार डाल दो और अपने मुल्क पर रहम करो, जिसका पहले ही शिराजा बिखर रहा है। जरा उसके हुस्न पर तो गौर करो जिसे तुम धोखा दे रहे हो। ये कैसा शहर है और ये कैसी हैकल है। तुम में से कौन पहले उसको आग लगाएगा? आप में से कौन चाहता है कि ये सब कुछ ना रहे? ऐ नादानो, ऐ संग दिलो, कम से कम अपने खानदानों पर तो तरस खाओ और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों, बीवियों और वालिदैन को लाओ जो जंग या कहत से बर्बाद हो जाएंगे। मैं जानता हूं यह खतरा मेरी मां, मेरी बीवी और खानदान को भी है। शायद आप ये सोच रहे हो कि मैं उनकी खातिर कह रहा हूं और तुम्हें ये नसीहत कर रहा हूं। अगर ऐसी बात है तो मेरी जान ले लो, शायद ये आपकी निजात का सबब बन जाए। अगर आप इस दीवानगी से बाज आ जाएं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। लीडर तो अपनी जगह डटे रहे, लेकिन चंद लोग चोरी छुपे शहर से निकल गए और टाइटस ने उन्हें आजाद होने की इजाजत दे दी। यूहन्ना और शमाउन ने फौरन ये ऐलान किया कि अगर कोई ऐसे भागने की कोशिश करेगा तो उसकी सजा मौत होगी, और फिर वो लोगों को महज शक की बिना पर पकड़ने लगे कि वो भागने का इरादा कर रहे थे। नतीजतन वो अमीर घरों पर हमला करने लगे कि वो शहर छोड़ने का इरादा कर रहे थे। यूं वो उन्हें कत्ल करने लगे और उनकी जायदाद ईंटने लगे। लेकिन लोगों की असल मुसीबत उनकी भूख थी। जिस तरह जोसेफस ने मुशाहिदा किया कि इस तरह तो इंसानी शर्मो हया की धज्जियां उड़ गईं। पहले तो खानदान एक दूसरे के खिलाफ हो गए और फिर घरों में भी चपकलिश बढ़ने लगी। खावंद बीवियों से खुराक छीन लेते और माएं बच्चों को भी ना छोड़ती थीं। शगुफ्ता चेहरा खतरे का बाइस बन गया।
लोग जिनके गाल चिपके ना होते और आंखें चुंध ना होती, लगता कि उन्होंने खुराक छुपा रखी है। उनकी सरजनिश की जाती और उनके घर लूट लिए जाते। अगर पता चलता कि कोई खाना छुपा रहा है तो पीटा जाता। जिनके पास खाना ही ना होता उन्हें बुरी तरह अजियत दी जाती कि उन्होंने उसे छुपा रखा था। सफा नंबर 207। बागी तो ताले तक तोड़ देते और लोगों के मुंह से निवाला छीन लेते। अगर कोई बूढ़ा अगर मुंह तक नवाला लाता तो उसकी धुनाई कर दी जाती। औरतों को तो बालों से घसीटा जाता और बच्चों को उछालकर फर्श पर पटका जाता। जब दिन ढल जाता और रोमी मुहाफिजों के हथियार डालने का कोई निशान ना पाते तो रोमियों का जुल्म और वहशियाना हो जाता। कैदियों को बिला नागा कोड़े लगाए जाते, उन्हें अजियत दी जाती और फिर शहर के सामने उन्हें सूली पर लटका दिया जाता, और वो भी मुख्तलिफ हालतों में। ये जोसेफस का बयान है। ये लोग सलीबों की तरफ लपकते और हर लकड़ी को जो यरूशलेम में मिलती उनको उन पुश्तों को बनाने के लिए काट डालते। अभी तक मैसूर फौज मेहनत कर रही थी, तब यहूदियों ने एक और तरीका हर्ब अपनाया। यूहन्ना और शमौन ने अंतोनिया बंद के नीचे एक सुरंग खोदी और उसको लकड़ी से खड़ा किया। जून 16 को जब रोमी जंगी इंजन लाए तो यूहन्ना ने मस्ख शुदा लकड़ी और हाइड्रोकार्बन का मलगूजा उस सुरंग में रखकर उसे आग लगा दी। इससे ये सुरंग बड़ी आवाज से फट गई और आग ने अपनी लपेट में ले लिया। फौजी दस्ते अफरा तफरी में भाग खड़े हुए। 2 दिन बाद शमौन के आदमियों ने लकड़ी के उस ढांचे को जो 10 और 15 दस्ते ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था, आग लगा दी। शोलों ने उसे बड़ी तेजी से लपेट में ले लिया और कोई ऐसी राह ना सूझी कि वो उसे बचा सकते। इस तरह वो पीछे हट गए और यहूदी उनकी मदाफी लाइन तक चले गए, और यहां धुएं और गर्द में एक परेशान कुन जंग होती रही। बिलाखिर यहूदी शहर की तरफ लौट गए और रोमी परेशान खड़े ये सोच रहे थे कि क्या इस्तेमाल में आने वाले हथियार किसी काम के हो सकते थे जब दुश्मन उस जोश से मुकाबला कर रहा हो। टाइटस इस अमर पर सोचता रहा। अब उसके पास एक ही हथियार बचा था। वो जानता था कि यहूदी उस पर इक्तफा नहीं करेंगे, और वो थी भूख। तारीकी की ओट में चोरी छुपे खुराक की तलाश में जमातें शहर से बाहर निकलती और थोड़ी बहुत खुराक लेकर लौट आती। अगर इनसे भी उन्हें रोक दिया जाता तो मुहाफिज घुटने टेक देते। बहुत तेजी से उसके अंथक दस्तों ने 5 मील लंबा पूरा शहर के गिर्द हिसार कायम कर लिया और रात दिन उस पर पहरा देते रहे। यरूशलेम के अंदर इसका ये तरीका बताया जाने लगा और भूख का अंतम मकाम आ गया और मौत का शुमार बढ़ने लगा। जोसेफस बयान करते हैं कि बच्चे और औरतें भूख से निढाल थे। खाइयां लाशों से भर गईं और जवान और बच्चे मंडियों में साए की तरह बहक रहे थे। वो मौत के आते ही दम तोड़ देते। बागी घर घर जाकर मुर्दों और करीबुल मर्ग लोगों की अमलाक को खंगालते थे। उनमें बास तो मुश्किल से ही सांस ले रहे थे और फर्श पर चारों शाने चित थे, जिन्हें वो शुगल के तौर पर छुरा भोंक देते। जो मौत मांग रहे होते उन्हें वो छोड़ देते ताकि उनकी किस्म और भयानक हो जाए। जोसेफस का यह भी मुशाहिदा था कि मरने वाले अपनी आंखें हैकल की तरफ फेर लेते।